students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of Science Class 5th, chapter number 5, that is about the nervous system, the most important and the coordinating system of our body, known as nervous system. Why is it so important? Because it is the only system which controls and regulates the functioning of all the other organ systems present in our body. Alright, so in this lesson, we are going to cover the nervous system and also our sense organ. So first of all, you have to match these sense organs with the activities. Means, first of all, you can see the boy. यहाँ पे जो boy है, what is doing? He is watching television. So television या किसी भी एक object को देखने के लिए we use our sense organ known as eyes. So we will match it with the eyes. Alright. Secondly, over here, the boy is eating the food. So आप कोई भी चीज खाते हो या उस food को taste कर पाते हो because of your tongue. So we'll match it with the tongue. And the last over here, the boy is listening to music. And for listening or hearing any particular sound, we use our sense organ known as ear. Alright? Chalo. So the nervous system controls all the other system of our body. As I told you कि nervous system हमारी body के जो बाकी other system है उन सभी को control करता है. Now what are the different organs? को कौन से organs हैं जो कि nervous system में include किए जाते हैं? That is the brain, spinal cord and an enormous network of nerves. ठीक है, यानी nerves जो हैं हमारी throughout the body spreaded होती है and they are also the part of your nervous system only. First of all, we are going to learn about brain. Brain क्या है? It is the most important and delicate organ of your body. हमारे body का सबसे important and delicate organ है brain. Brain हमारे nervous system का control center होता है. It initiates, controls and coordinates between the various body activities. जो various body activities है, उनके बीच में initiation करना, control करना, coordination करना, this is the function of your brain. It has three main parts. Brain के कितने? Three main parts होते हैं. That is the cerebrum, cerebellum and brain stem, which is also known as medulla. Now they have given an amazing fact, that is the hypothalamus is an area of the brain which is the body center for emotions and instincts such as pleasure, hunger and thirst. What they saying कि hypothalamus क्या है? सुने, ये हमारे brain का ही एक part है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का सेंटर होता है इमोशंस के लिए या फिर जो प्लेजर, हंगर एंड थर्स्ट जैसे ये सारे इंस्टिंक्ट है, दे आर आल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ हाइपोथैलेमस ओनली. ऑलराइट, नाउ दे हैव शोन यू दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स है, एज वी हैव डिस्कस. ये आपका सेरिबेलम है, दिस इज मेड्यूला एंड दिस इज सेरेब्रम. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सेरेब्रम. सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, ये हमारा आउटर पार्ट होता है ब्रेन का, थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का एंड ऑल्सो वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है. व्हाट आर वॉलेंट्री मसल्स? द वन दैट मूव व्हेन यू वांट देम टू, यानी कि वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो तभी मूव करेंगी जब हम चाहेंगे, उन मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. एंड वॉलेंट्री मसल्स को सेरेब्रम वाला पार्ट कंट्रोल करता है ऑफ अवर ब्रेन. When you are thinking hard, जब आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, so actual में at that time you are using your cerebrum. Your memory lives in the cerebrum. ठीक है, हमारी जो memory है वो cerebrum में ही reside करती है. And therefore we can say कि cerebrum हमारी जो ability है to think, learn, decide, remember, dream, feel, इन सभी को control करता है. It also receives and interprets the information. इसके साथ साथ information को receive करना, interpret करना from our sense organ is also being controlled by cerebrum only. The second part we have cerebellum. Cerebellum कहाँ present है? It is at the back of the brain. Cerebellum brain के back वाले part में present होता है, below the cerebrum. Cerebrum के नीचे. It coordinates muscular activities. Cerebellum का काम है हमारी muscular activities को coordinate करना and also it is responsible हमारी body balance के लिए. ठीक है, playing, running, moving, hand, riding a bike या जितने भी other movements है, they are controlled by cerebellum only. चलो, now the next part of our brain is medulla or brain stem, जो कि below the cerebrum होता है and in front of the cerebellum होता है.
एक्चुअल में मेडुला जो है हमारे रेस्ट ऑफ द ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है. इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग. मेडुला हमारे ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, सभी डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. एंड ऑल्सो हमारे जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, द मसल्स विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लाइक हार्ट मसल्स, स्टमक मसल्स, सो ये सारे इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है मेडुला. Voluntary were being controlled by cerebrum and involuntary are being controlled by the medulla. Now be good to your brain. Now they have given you some measures that how can we take care of our brain. Number one, wear a helmet when you ride a bike. जब आप bike ride करते हैं, you should always wear a helmet. Secondly, get a lot of play time. Exercise होती है उससे. यूज योर ब्रेन. आपको अपने ब्रेन को यूज करना चाहिए चैलेंजिंग एक्टिविटीज करके, सच एज पजल्स, रीडिंग, मेकिंग आर्ट एक्सेट्रा, जिससे आपके ब्रेन को एक वर्कआउट मिलेगा. एंड ईट हेल्दी फूड. हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसके अंदर पोटेशियम एंड कैल्शियम हो. व्हाई? बिकॉज पोटेशियम एंड कैल्शियम ऐसे 2 मिनरल्स है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर नर्वस सिस्टम. राइट. नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड. So spinal cord starts at the narrowed base of the brain and runs down inside the spine. Spinal cord हमारे brain के narrow base से start होता है and throughout the spine run करता है. It connects the other parts. Actual में spinal cord हमारे जो बाकी body parts है उसे brain के साथ control करता है through thread-like structures, जिन्हें हम क्या कहते हैं? Nerves कहते हैं. ह्यूमन बॉडी में स्टूडेंट्स 43 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं उसके साथ. देन वर्टिब्रल कॉलम, व्हाट इज इट? वर्टिब्रल कॉलम इज अ कलेक्शन ऑफ बोन. ठीक है, एक बोन्स का कलेक्शन, जिसे आप बैक बोन भी कहते हो, उसे कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम. एंड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड होती है एंड प्रोटेक्टेड रहती है. मैसेजेस ट्रैवल फ्रॉम द ब्रेन. एक्चुअल में जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रैवल करते हैं एंड देन इसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट तक जाते हैं. इन द सेम वे इसी तरीके से जो इनकमिंग मैसेजेस हैं वो हमारे पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन इट ट्रैवल अप टू अवर ब्रेन. ऑलराइट. थर्ड पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम इज नर्व्स. सो नर्व्स क्या है? नर्व्स आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड दे कैरी थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस ऑफ एवरी पर्टिकुलर सेकेंड. ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के सारे जो पार्ट्स है स्टूडेंट्स, उनमें कुछ सर्टेन सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड नर्व सेल्स और सिंपली न्यूरॉन्स. ईच नर्व सेल, हर एक नर्व सेल में एक सेल बॉडी प्रेजेंट होती है. दे हैव गिवन यू दिस इज अ नर्व सेल. ठीक है, सो ये जो है दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज सेल बॉडी. ऑलराइट. एंड सेल बॉडी के ये सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. देन स्मॉल फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स कम आउट फ्रॉम द सेल बॉडी. एंड इस सेल बॉडी से ये छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं जो बाहर की तरफ रन करते हैं. लीज वन, ये स्मॉल फाइबर्स है, इन्हें वी कॉल व्हाट? डेंड्राइट्स. Alright, we call them dendrites. Then a long fiber called axons extends from one end of the cell body. And उसके बाद एक long fiber होता है जो cell body के एक end से extend करता है. ये cell body थी, इससे extend करने वाला ये long fiber. This is known as what? Axon. ठीक है. एक्सॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. यही एक्सॉन है जो ब्रेन से सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है एंड उसके बाद डेंड्राइट्स तक ले जाता है टू कैरी द इंफॉर्मेशन बैक टू द ब्रेन. ऑलराइट. नाउ टाइप्स ऑफ नर्व्स. सो हाउ मेनी? 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स आर देयर. दैट इज sensory nerves, motor nerves and connective nerves. First of all, we have sensory nerves. Sensory nerves carry signals from the sense organ to the spinal cord and then to the brain. सेंसरी नर्व्स जो है सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल्स ले जाती हैं एंड वापस उसे ब्रेन तक लाती हैं. ठीक है, इनमें आपके टेम्परेचर, स्मेल, कलर एक्सेट्रा ये सारे मैसेजेस इंक्लूडेड होते हैं. देन मोटर नर्व्स जो है वो मैसेजेस को कैरी करती हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को मसल्स एंड ग्लैंड्स तक ले जाने वाली जो नर्व्स हैं दे आर कॉल्ड मोटर नर्व्स. And these messages tell the muscles, ये messages muscles and glands को बताते हैं to take any particular action.
देन कनेक्टिव नर्व्स कौन सी होती है? कनेक्टिव नर्व्स वो होती हैं जो मैसेजेस को सेंसरी नर्व सेल एंड मोटर नर्व सेल इनके बीच में पास करती हैं. ठीक है. नाउ next topic we have is reflex action. What do you do if you accidentally touch a very hot cup of milk? You withdraw your hand immediately without even thinking. So such actions that happen automatically without thinking are called reflex action. What they saying है कि जब आप accidentally किसी भी एक hot cup of milk को touch करते हो, what do you do? आप तुरंत अपना hand वहाँ से क्या कर लोगे? Withdraw कर लोगे without even thinking. सो स्टूडेंट्स यही ऐसे एक्शंस जो कि ऑटोमेटिकली एक इमीडिएट एक क्विक रिस्पॉन्स जब आप किसी भी एक चेंज जो कि आपके सराउंडिंग में आया है उसके लिए लेते हो. ऑलराइट, ऐसे एक्शंस को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन विच आर टेकन विदाउट एनी थिंकिंग वेरी इमीडिएटली. दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. जो आपने एक हॉट कप ऑफ मिल्क को टच करते ही एक्सीडेंटली आपने टच किया था एंड यू जस्ट इमीडिएटली विड्रॉ योर हैंड विदाउट एनी थिंकिंग. सो ये जो एक्शन था विड्रॉ करने का हैंड को, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ऑलराइट, सी इन रिफ्लेक्स एक्शन द ब्रेन हैज नो रोल एज आई टोल्ड यू. ठीक है, ओनली द स्पाइनल कॉर्ड, केवल स्पाइनल कॉर्ड ही है जो इन्वॉल्व होता है. वी कैन से दैट द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड नॉट द ब्रेन. सो व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे ही आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आपकी सेंसरी नर्व्स ने सिग्नल जो कि हाई टेम्परेचर का सिग्नल था उसको कन्वे किया किस कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड तक. एंड देन इस सिग्नल को सीधे मोटर नर्व्स तक ट्रांसफर कर दिया गया कनेक्टिंग नर्व्स के थ्रू. एंड मोटर नर्व्स अब इंस्ट्रक्शंस को आपके हैंड के मसल्स तक ले जाएंगी दैट एंड देन यू विल इमीडिएटली विथड्रॉ योर हैंड फ्रॉम देयर. दैट मींस मैसेजेस ब्रेन तक तो गए ही नहीं. ऑलराइट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आईज को ब्लिंक करना, विड्रॉइंग द फुट व्हेन यू स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट. अगर आप गलती से किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फुट रख देते हो तो तुरंत वहां से अपने फुट को विड्रॉ करना, आईज को ब्लिंक करना, ये सब भी एग्जांपल्स हैं ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ओनली. ऑलराइट, now the next topic which we have is that is our sense organ. So students, as we all know, how many there are 5 sense organs in our body, that is eyes, ear, nose, skin and tongue. So first of all we will talk about eyes. Eyes क्या है? The sense of sight it provides us, है ना. So eyes हमें एक sight का sense provide करती है, या फिर आप बोल सकते हो eyes is a organ for sight. So our eyes are at work from the moment we wake up to the moment we close them to go to sleep. हमारी eyes जब आप मॉर्निंग में वेकअप करते हो तब से लेकर रात में जब तक आप सो नहीं जाते तब तक कंटिन्यूसली वर्क करती हैं. दे हेल्प अस टू गेट इन्फॉर्मेशन. एक्चुअल में ये हमारी हेल्प करती हैं उन एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके विच आर गोइंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस. दे हैव गिवन यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई ओवर हियर. सो नंबर 1 द आईलिड्स एंड द आईलैशेस. सबसे पहले बाहर आईलिड्स एंड आईलैशेस प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी आईज को डस्ट से प्रोटेक्ट करती है. देन द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई. उसके बाद आपके आई में जो ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल. व्हाट इज कॉल्ड? प्यूपिल. एंड लाइट एंटर्स अवर आईज थ्रू द प्यूपिल. लाइट हमारी आईज के अंदर इसी प्यूपिल के थ्रू एंटर करती है. देन द कलर्ड सर्कल अराउंड द प्यूपिल इज कॉल्ड आइरिस. एंड उसके बाद इस आइरिस के अराउंड जो कलर्ड सर्कल होता है दैट इज कॉल्ड आइरिस. ठीक है. एंड द अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे प्यूपिल के थ्रू पास होगी, इसे कंट्रोल कौन करता है? आइरिस ओनली. सो आइरिस के 2 मेजर फंक्शन है. एक तो हमारी आई को कलर प्रोवाइड करना एंड ऑल्सो टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अवर आईज थ्रू प्यूपिल. द पिगमेंटेशन ऑफ द आई, आइरिस. ठीक है, आइरिस का जो पिगमेंटेशन होता है वो हमारी आईज को कलर प्रोवाइड करता है एज आई टोल्ड यू. एंड देन वी हैव ऑप्टिक नर्व्स. यहाँ पे देखो आपके बैक में, आई के बैक में ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो मैसेजेस को कैरी करती हैं फ्रॉम द आई टू द ब्रेन. सो हाउ डू वी सी? व्हेन वी सी समथिंग, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, व्हाट वी आर सीइंग इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड लाइट. सो एक्चुअली जो आपको दिख रहा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है. सो लाइट रेज बाउंस ऑफ. एक्चुअल में लाइट रेज क्या करती हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके बाउंस बैक करती हैं एंड देन दे एंटर अवर आईज. नेक्स्ट आई हैव गिवन यू केयर फॉर आईज. आईज की केयर कैसे करनी है? सो डू नॉट रीड इन अ मूविंग कार और बस. किसी भी मूविंग कार या बस में कुछ भी रीड नहीं करना चाहिए. बहुत ज़्यादा डिम या ब्राइट लाइट में आप रीड नहीं करेंगे. क्लीन योर आईज. आपको अपनी आईज रेगुलरली क्लीन करनी चाहिए.
Dirty hands say we do not have to rub our eyes. And do not watch television. Television को बहुत long या लॉन्ग टाइम पीरियड तक नहीं हमें देखना चाहिए. एंड एटलीस्ट हमें 6 feet डिस्टेंस पर फ्रॉम द टेलीविजन वी शुड सिट while we are watching it. अमेजिंग फैक्ट दैट इज डॉल्फिन. डॉल्फिन्स के पास स्टूडेंट एक बेस्ट सेंस ऑफ हियरिंग होता है अमंग द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव ईयर्स ओनली, द ऑर्गन ऑफ हियरिंग. सो आर ईयर्स क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू हियर द साउंड, राइट. Our ears take vibrations and turn them into something our brain can understand. Actual में हमारे ears जो है vibrations को अपने अंदर intake करते हैं and उसे कुछ इस तरीके से convert करते हैं, कुछ इस form में convert करते हैं so that हमारा brain उसको समझ सके. Now our ear, हमारे ear के 3 major part होते हैं, that is the outer ear, middle ear and the internal ear. I have shown you. ठीक है. So the external ear, सबसे पहले external ear की बात करें, उसका पार्ट है पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम. ठीक है, दिस इज योर ऑडिटरी कैनाल, दिस इज पिन्ना, ऑलराइट, एंड ये था आपका ईयर ड्रम. सो द साउंड वेव्स कलेक्टेड बाय द पिन्ना, सबसे पहले पिन्ना जो है साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है एंड देन ऑडिटरी कैनाल के थ्रू वो साउंड वेव्स मूव करके कहाँ जाती है? ईयर ड्रम तक जाती है, ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है. देन द मिडल ईयर, उसके बाद उस मिडल ईयर में क्या एयर फिल्ड हो जाती है एंड इसके अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होती है मिडल ईयर में. ठीक है, इट ट्रांसफर द साउंड्स फ्रॉम द एयर. उसके बाद वो क्या करता है? साउंड को एयर से ट्रांसफर करता है टू द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द ईयर. एंड उसमें एक इंटरनल ऑर्गन भी हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड कॉक्लिया. यू कैन सी दिस इज द कॉक्लिया, दिस वन. ठीक है, यही एक्चुअल में कॉक्लिया ही वो ऑर्गन है विच हेल्प्स टू टेक द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशंस को टेक करके उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसलेट करता है फॉर द नर्व टू सेंड इट टू द ब्रेन. ऑलराइट, चलो ना केयर फॉर ईयर्स. ईयर्स की केयर कैसे करेंगे? नंबर 1, कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ एन ईयरएक. अगर आपके ईयरएक है, कान में दर्द है, तो आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे. कभी भी मैस्टिक या हेयर पिन का या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का वी आर नॉट गोइंग टू यूज टू क्लीन अवर ईयर्स. एंड थर्डली, नेवर हियर लाउड म्यूजिक. बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक इनमें सुनना नहीं चाहिए. So first of all, nose help us to smell the things. Nose के through what we could do, we can smell the things, है ना? There are millions of tiny little hair हमारे nose के अंदर present होते हैं. And ये hair जो है dust particles को trap करते हैं जो हमारी nose में enter कर रहे हैं and air को filter करते हैं which we are breathing. These hair are connected to, and उसके बाद ये hair जो है small sensors के साथ connected होते हैं. एंड ये हेयर सिग्नल्स को सेंड करते हैं टू अवर ब्रेन अबाउट स्मेल. ठीक है, किसके थ्रू? बाय ओल्फैक्टरी नर्व. वी स्मेल थिंग्स, हम चीजों को स्मेल कर पाते हैं व्हेन दे रिलीज टिनी मॉलिक्यूल्स, जब वो क्या करते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एयर में रिलीज करते हैं एंड देन इट ट्रैवल अप अवर नोस्ट्रल्स, ऑलराइट, एंड बाइंड टू स्पेशल सेंसर्स इन अवर नोज. एंड उसके बाद ये क्या हमारे जो नोज में स्पेशल सेंसर्स होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाते हैं. स्मेलिंग हेल्प अस इन मेनी वेज. एंड इस तरीके से स्मेलिंग जो है डिफरेंट वेज में हमारी हेल्प करती है. सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू वार्न अस फ्रॉम द बैड थिंग्स लाइक रॉटन फूड और स्मोक फ्रॉम फाइबर. उसके अलावा आपको जो नोज है वो आपको वार्न करती है कि कोई भी बैड थिंग के लिए, जैसे कि रॉटन फूड है या फायर से कोई स्मोक आ रही है ना. सेकेंडली, इट मेक्स अवर फूड टेस्ट बेटर. ठीक है, आपके फूड का टेस्ट आपको बेटर समझ में आता है बिकॉज ऑफ योर नोज ओनली. नेक्स्ट वी हैव केयर फॉर नोज. तो नोज की केयर कैसे करनी है? कीप योर नोज क्लीन, अपनी नोज क्लीन रखनी है. द हेयर इन योर नोज, हमारे नोज में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो डर्ट को फिल्टर करते हैं. सो ऑलवेज वी शुड ब्रीथ थ्रू अवर नोज ओनली. सेकेंडली, डू नॉट पिक योर नोज, नोज को पिक नहीं करना है. एंड थर्ड, डू नॉट यूज अ डर्टी हैंडकरचीफ. अपनी नोज को वाइप करने के लिए डर्टी हैंडकरचीफ का यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट मे कॉज इन्फेक्शन. नेक्स्ट वी हैव टंग. टंग क्या है? द ऑर्गन ऑफ टेस्ट. सो टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड. टंग के थ्रू हम फूड को टेस्ट कर पाते हैं. टंग यूजेस टेस्ट बर्ड्स. एक्चुअल में टंग टेस्ट बर्ड्स या सेंसर सेल्स का यूज करती है टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फूड. उस टाइप ऑफ फूड को डिटरमाइन करने में कि भाई फूड किस टाइप का है, और उसके बाद टेस्ट सिग्नल्स को सेंड करती है बैक टू अवर ब्रेन.
द टंग कैन टेस्ट 4 डिफरेंट फ्लेवर। एक्चुअल में स्टूडेंट्स हमारी टंग जो है 4 डिफरेंट फ्लेवर्स को टेस्ट कर सकती है, दैट इज बिटर, सार, सॉल्ट एंड स्वीट। सो व्हेन वी ईट समथिंग, जब भी आप कोई चीज खाते हो तो वो फ्लेवर जो है किससे, टेस्ट एंड स्मेल दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको समझ में आता है। यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट टेस्ट बड्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द टंग। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ टंग, सो अवॉइड वेरी स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या हॉट फूड ड्रिंक्स जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उनको डैमेज होने से प्रिवेंट किया जा सके। ऑलराइट, देन दे हैव गिवन यू अमेजिंग फैक्ट दैट इज जस्ट लाइक सम पीपल कैन नॉट सी और हेयर, जैसे कि कुछ लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, उसी तरीके से सम पीपल कैन नॉट स्मेल, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्मेल भी नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एनोस्मिया। ठीक है, चल। Now the next topic which we have is that is skin, the organ of touch and feel. Skin क्या है? It is an organ of touch and feel. And skin एक सबसे largest organ है हमारी body का, because it covers our entire body. ठीक है? It absorbs sunlight for vitamin D and heat. Skin जो है sunlight को absorb करती है vitamin D and heat के लिए. And also skin हमारे सारे internal organs को germs and dirt से या किसी भी external harm से protect करती है. देर आर मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स। ठीक है, मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि हमारे स्किन के साथ अटैच्ड होती हैं, एंड उसी के थ्रू वी कुड फील द हीट, पेन, प्रेशर एंड कोल्ड। ऑल्सो इट रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर। स्किन हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है बाय कंट्रोलिंग द ब्लड फ्लो। कैसे? ब्लड फ्लो एंड स्वेट को कंट्रोल करके। द स्किन हैज 3 प्राइमरी लेयर्स। कितनी? 3 प्राइमरी लेयर्स हमारे स्किन के पास होती है, दैट इज एपिडर्मिस, dermis and hypodermis. You can see they have shown you. सबसे आउटर वाली लेयर है एपिडर्मिस, उससे नेक्स्ट है डर्मिस, एंड द इनर वन इज हाइपोडर्मिस। सो केयर फॉर स्किन, हम स्किन की कैसे केयर करेंगे? सो द डर्ट एंड स्वेट। ठीक है, स्किन से डर्ट एंड स्वेट को रेगुलरली रिमूव करना जरूरी होता है। एंड सेकेंडली एन एंटीसेप्टिक शुड बी अप्लाइड। ठीक है, अगर आपकी स्किन पर कोई भी कट या स्क्रैच आ जाता है तो उस पर इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए वी शुड अप्लाई एंटीसेप्टिक ओवर देयर। अगेन अमेजिंग फैक्ट दैट द एवरेज लेंथ, ठीक है, एक जिराफ की टंग की जो एवरेज लेंथ है दैट इज अराउंड 19 इंचेस। सेकेंडली इन ह्यूमंस में द राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, हमारे ब्रेन का राइट साइड होता है स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, वेयर एज जो लेफ्ट साइड है ब्रेन का वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। देन द वेट ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का जो वेट होता है किसी भी एवरेज एडल्ट मेल में वो अराउंड 1375 ग्राम्स है, वाइन इन फीमेल्स में जो वेट है दैट इज 1275 ग्राम। Now let us recall the chapter. So the brain, spinal cord and nerves, they all together make up our nervous system, right? Secondly, nervous system क्या करता है? हमारे बाकी जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं सभी को कंट्रोल करता है। थर्ड, ब्रेन के कितने 3 मेन पार्ट हैं, दैट इज सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। फोर्थ, नर्व्स क्या करती हैं? दे कैरी मैसेजेस टू एंड अवे फ्रॉम द ब्रेन थ्रू आउट द बॉडी। फिफ्थ, हाउ मेनी? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन जो हमें क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग के टूवर्ड्स रिस्पॉन्ड करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन। अपने सेंस ऑर्गन्स की केयर करना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। The chapter is completed. This was all about the nervous system and the various sense organs of our body which help us to sense and respond to our surrounding. I hope you must have understood the chapter. Let's meet very soon. Till then, keep going well and thanks to all.